वेलकम बैक। 2026 के पहले 25 दिन गुजर चुके हैं और इस कुराए अर्ज पे कोई ऐसा बर आज़म नहीं है अंटार्कटिका को अगर हम एक तरफ निकाल दें जहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक को प्रेसिडेंट ट्रंप धमकियाँ ना दे चुके हों। वेनेजुएला हो, ईरान हो, ग्रीनलैंड हो, यूरोप के अंदर मुख्तलिफ ममालिक हो, नेटो हो, कनाडा हो, ईरान हो, क्यूबा हो, इन तमाम ममालिक को वक्तन बवक्तन प्रेसिडेंट ट्रंप किसी न किसी तौर से धमका चुके हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। Today, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela, but captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice, District of New York. But we're going to run it properly, and we're going to make sure the people of Venezuela are taken care of. Iran said that the last time. They better behave. Yeah, the message is they've got to show humanity. They've got a big problem. I wish the United Nations could do more. I wish we didn't need a board of peace, but the United Nations, and you know, with all the wars I settled, the United Nations never helped me on one war. So we want a piece of ice for world protection, and they won't give it. We've never asked for anything else, and we could have kept that piece of land, and we didn't. So they have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember. No, I think, but I've always said, will they be there if we ever needed them? And that's really the ultimate test, and I'm not sure of that. We've never needed them. We have never really asked anything of them. You know, they'll say they sent some troops to Afghanistan or this or that, and they did. They stayed a little back, a little off the front lines. Well, Cuba's an interesting case. Cuba is, not doing very well right now. That system has not been a very good one for Cuba. The people there have suffered for many, many years, and I think Cuba is going to be something we'll end up talking about, because Cuba is a failing nation right now, very badly failing nation. लेकिन खाली यहाँ ही मामला ख़त्म नहीं होता। चीन के हवाले से भी प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हैं कि ये ना सोचें कि कनाडा जो है उसको कहीं ना कहीं चाइना को हम टेक ओवर करने देंगे। तो ओवरऑल जिसे वो कहते हैं ना कि और हर तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनकी अटेंशन इस वक्त है। जब उनसे पूछा जाता है कि आप ये सारी बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन हमला नहीं करते हैं या कोई अग्रेसिव स्टेप नहीं उठाते हैं, तो उन्होंने कहा मेरी अपना एक मॉरल कंपस है, मेरी अपनी अखलाकियात है जो मुझे रोकती है इस काम से। Do you see any checks on your power on the world stage? Is there anything that could stop you if you wanted to? Yeah, there's one thing. My own morality, my own mind. It's the only thing that can stop. Not international law. And that's very good. I don't need international law. और अब इसका अदराक दुनिया भर की दीगर ताकतों को उस वक्त हो रहा है जब वो लकीर की दूसरी तरफ चले गए हैं और इस पावर नेक्सस के वो बेनिफिशरी नहीं रहे। फॉर एग्जांपल कनेडियन प्राइम मिनिस्टर साहब अब वो कह रहे हैं कि उनको नज़र आ रहा है कि ऐसा दौर है जहां ताकतवर मज़ीद ताकतवर है और कमज़ोर हो रहा है। लेकिन दुनिया ऐसी ही थी, सिर्फ अब ये ऐसा हुआ कि कनाडा और जो यूरोपियन ममालिक हैं वो उसके बेनिफिशरी नहीं रहे। क्या कहा कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने, सुनिए। It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry, that the rules-based order is fading, that the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. In a world of great power rivalry, countries in between have a choice: compete with each other for favor, or to combine, create a third path with impact. We shouldn't allow the rise of hard power to blind us to the fact that the power of legitimacy, integrity, and rules will remain strong if we choose to wield them together. हर रोज़ हमें अंदाज़ा नहीं होता कि आज एक सुबह उठेंगे तो प्रेसिडेंट ट्रंप की किस रूप से आपकी मुलाकात होगी। क्या वो रूप जो इन ताकतवर ममालिक को धमकी देता है, या वो रूप जो उनकी तारीफ़ करता है। नेटो को और बरतानवी फ़ौज पे 2 दिन पहले वो तनकीद कर रहे थे और फिर आज हमने देखा कि एक तारीफ़ी बयान भी सामने आ गया जिसमें उन्होंने वॉर अगेंस्ट टेरर में यूके के किरदार की जो है उसकी तारीफ़ की, उसको एक्नॉलेज किया। लेकिन अभी ये इलेक्शन ईयर भी है अमेरिका में, तो ये जो बाहर उन्होंने सारे महाज खोले हैं अंदरूनी पॉलिटिकल महाज के ऊपर मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की। हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर उनको बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा है, ख़ास तौर पे जो आइस है जो वहाँ पे लोगों को हरास कर रही है, उन्हें गोलियाँ मार रही है, तो वहाँ पे अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकल आया। यही नहीं, सर्वे भी कुछ प्रेसिडेंट ट्रंप को इतना ज़्यादा फेवर नहीं कर रहे हैं। अमरीकी अखबार जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसके ताज़ा सर्वे के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत के 1 साल बाद भी अमरीकी वोटर्स की अक्सरियत का ख्याल है कि मुल्क की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, ट्रंप की तरजीहात गलत हैं। इसको अगर हम टेबल में आपके साथ शेयर करें तो अमरीकी हालात क्या बेहतर हुए हैं, सिर्फ 32% लोग ये समझते हैं। अमरीकी हालात ख़राब हुए हैं, ये ज़्यादातर लोगों का ख्याल है। ट्रंप की तरजीहात गलत हैं, 57% लोग ये समझते हैं।
अमरीकी अवाम की ज़िंदगी मुश्किल हुई है, ये 51% का मानना है। ट्रंप हरगिज़ अच्छे सदर नहीं है, 42% लोग ये बात मानते हैं। पैसे वालों के और जो करोड़पति क्लास है वहाँ पे, जो बिलियनर्स हैं, जिनमें से बहुत सारे लोगों ने फंड की प्रेसिडेंट ट्रंप की कैंपेन को, वो भी अब इतने कोई ऑप्टिमिस्टिक नज़र नहीं आते हैं। इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन कंसल्टेंसी ग्रुप आर्ट एंड कैपिटल के मुताबिक ट्रंप के दूसरे दौर के 1 साल मुकम्मल होने के बाद अमरीकी करोड़पति क्लास ट्रंप की पॉलिसियों से नाखुश हैं। कितने % लोग हैं जो अमरीका छोड़ना चाहते हैं? 31% लोग ऐसे हैं। 84% अमेरिकन जो हैं वो अपनी फॉरेन पॉलिसी से खुश नहीं हैं। 74% को मुस्तकबिल अपना गैर महफूज लग रहा है। 75% अमरीका से बाहर बेहतर मौके की तलाश में है। जब अमरीकी करोड़पति क्लास से पूछा गया कि भाई आप अमरीका छोड़कर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, तो ज़रा उनका जवाब मुलाहिजा कीजिए। पहली तरजीह उनकी कनाडा है, दूसरी तरजीह आयरलैंड है, तीसरी तरजीह न्यूजीलैंड है और चौथी तरजीह ऑस्ट्रेलिया है। अब ट्रंप साहब को ये सर्वे के नताइज भी पसंद नहीं आ रहे, तो वो कह रहे हैं कि वो इन सर्वे कराने वालों के खिलाफ अदालत में जाएंगे और उनको सू करेंगे। ख़ास तौर पे हमने देखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स को का सर्वे उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। इंडिया जो है, हम इसको आगे थोड़ा बढ़ते हुए जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसके बारे में भी मुख्तलिफ ममालिक शशोपंच का शिकार है। उसमें भारत सर फहरिस्त है और अभी तक वो फैसला कर नहीं पा रहा है। BBC की एक रिपोर्ट है, उसके नामानिगार राजनेश कुमार की स्टोरी के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा में तामीर नौ से मुतालिक बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए इंडिया को भी दावत दी है। ताहम अभी तक ये वाज़े नहीं हो सका कि इंडिया इस दावत को कबूल करेगा या नहीं। इंडिया के बैनुल अक़वामी अमूर के माहिरीन जो इस हक में है कि इंडिया को ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना चाहिए है, वो ये जवाब पेश कर रहे हैं कि ट्रंप पीस बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा चैलेंज नहीं कर रहा क्योंकि उसकी नुमाइंदगी महदूद है। ट्रंप की शमूलियती दावत से इंडिया के मखमसे में इजाफा हुआ है। चाहे इंडिया इसे कबूल करे या रद्द करे, इसका असर पड़ेगा क्योंकि इस फैसले से मगरबी एशिया मुतासर होगा। मगरबी एशिया में इस्तेहकाम, इंडिया की तवानाई की सलामती, इंडियन तारीके वतन के मुफादात, जहाजरानी के रास्तों और सरमायाकारी के लिए ज़रूरी है। ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत से इंडिया पर इसके असरात पड़ रहे हैं और दबाव भी बढ़ रहा है कि वो भी ऐसा करे। इंडियन अखबार द हिंदू के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का पाकिस्तान का फैसला इंडिया के लिए एक इंतबाही इशारा है। खास तौर पर अगर ट्रंप ने तनाज़े कश्मीर को अमन के मंसूबों में शामिल करने का फैसला किया तो बोर्ड ऑफ पीस इसे हल करने की कोशिश करेगा, जिससे इंडिया को धचका लगेगा। अमरीका और इंडिया के ताल्लुकात में पड़ने वाली दरार और तजारती मुज़ाकरात की नाजुक सूरत हाल भी इस मरहले पर ट्रंप की दावत को मुस्तरद ना करने की वजूहात में से हो सकती है। ऐसा करने से ट्रंप की नाराज़गी मोल ली जा सकती है। प्रोग्राम के सिलसिले में मुशाहिद हुसैन सईद साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के सीनियर सियासतदान। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब।